के साथ आउटिंग की तो वो तो क्लास कह में। रहा है मैंने रिकॉर्डिंग देख ली थी, आउटिंग से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कह रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग देख ली थी। जी जी सर। तो बेटा डू मेक श्योर कि कोशिश करें कि अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको सेट करें। जब आप प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस भी आएगी, आपके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट लिया हुआ है, ठीक है। Today we are going to discuss limits of accuracy once again a bit. I'm going to explain only few portion of the limit of accuracy, and then we are going to attempt few questions on that. So please pay attention, everybody. Limits of accuracy. Limit of accuracy. Yesterday I was explaining this question, and I hope that most of you are eligible now to answer a question at least. Limit of accuracy means that up to which extent, up to which extent, up to which extent a particular answer, a particular answer slash value is correct, right? That up to which extent a particular answer or the value is correct. What we do, we take only two things in it, and the first thing is lower bound, and the second thing is upper bound. ठीक है, इट्स अ रिकॉल ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर, तो मैं दोबारा ब्रेनस्टॉर्म करवा रहा हूँ, तो काइंडली डू वैल्यू इट, ओके। So for example, what is upper bound and what is lower bound? Question is, for example, my mass is, for example, 70 kg, correct to nearest, correct to nearest, for example, 10 kg. So now better remember one thing. This 70 kgs is known to you, but it has some error. And what that error is, that is of error 10 kg. So what you will be doing, that you will be dividing that error, whatever that error is, you have to divide that error by 2. So 10 divided by 2 is 5 kg. So in case of upper bound, in case of upper bound, add the error, add the error, वदान एरर को ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब है कि अपर बाउंड ऑफ मास होगा 70 प्लस 5 75 kg, ठीक है वदान। एंड लोअर बाउंड शहीर ऑफ मास वुड बी 65 70 केजी। माइनस 5 विच इज 65 kg। अब ये 75 और 65 क्या है वदान? इन अवर नॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे आप पश्तो में नहीं कहते ज्यादा ना ज्यादा, जी जी, ज्यादा ना और ज्यादा कम अज कम। हाँ जी, तो ये है भाई ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और लोअर बाउंड कहते हैं कम से कम, कम ना कम जैसे नहीं बोलते आप लोग, जी सर। ठीक है। ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर नीचे जा सकते हैं। एग्री? तो सर ज्यादा से ज्यादा हमें 5 केजी ही ज्यादा करना होता है। जी, जो एरर आपको गिवन हो, ठीक है। करेक्ट टू नियरेस्ट के बाद जो चीज लिखी होगी उसको 2 पे डिवाइड करना है। एग्री? अच्छा अच्छा, जो मतलब यहाँ पर करेक्ट टू नियरेस्ट 10 केजी है तो उसमें नियरेस्ट से 10 लिखा है तो मैंने 10 को 2 पे डिवाइड किया। अगर ये 5 केजी होता तो मैं 5 को 2 पे डिवाइड करता तो 2.5 ऐड भी करता और 2.5 माइनस भी करता, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है अच्छा, ठीक है सर। इसके कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स 4 फॉर्मूले हैं, जरा समझ डालें प्लीज। वी नो दैट इन मैथ्स वी हैव 4 टाइप्स ऑफ formulas, 1 2 3 4. The first formula is that a is equals to b plus c. Second formula is that a is equals to b multiplied by c. Third formula would be a is equals to b minus c. And the third formula would be of the division, that b divided by c. Understood, everybody? Multiplication and addition is very simple. Why? Vadan, if you are taking upper bound of a, तो आपने b और c का भी upper bound लेना है। Multiplication में भी same रहेगा। Agree? Agree? But in case of subtraction, if you are taking upper bound here, so you have to take upper bound of b, but you have to take the lower bound of c. Understood? In case of the division, अगर upper bound ले रहे हैं तो यहाँ पे b का भी upper लेंगे लेकिन c का lower लेंगे। ये क्वेश्चंस में समझ आता है। Understood? इसके अलावा नहीं। Agree? जी सर, अंडरस्टूड।
Okay. Ramin, do you understand this thing? Any questions so far? Those who have attended the yesterday's lecture? Misha, Maya? Misha, Arwa, do you understand? Iman? Yes, sir. Okay. Mohit, do you understand this? सर एक और क्वेश्चन समझा. Yes, Okay. sir. बेटा देखें, in math we have 4 types of formulas. The formula type number 1 is the plus formula. Agree? टाइप नंबर 1 क्या होती है हमारे पास? प्लस वाला फॉर्मूला होता है. प्लस वाले फॉर्मूले में अगर आप लेफ्ट साइड पे अपर बाउंड ले रहे हैं तो राइट के दोनों साइड पे आपने अपर बाउंड लेना ही होते हैं. ठीक है. अगर लेफ्ट साइड पे लोअर ले रहे होता तो राइट पे भी दोनों साइड से मैं लोअर लेता. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम. मल्टीप्लीकेशन में भी केस रिमेन्स द सेम. इट इज सिंपल. बट याद रखना है कि माइनस में और डिवाइड में इफ यू आर टेकिंग अपर बाउंड ऑन द लेफ्ट साइड तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल का अपर लेना है लेकिन सेकंड वेरिएबल का लोअर लेना है. और सेम केस विद द डिवीजन एज वेल. अंडरस्टूड उमर? लेफ्ट पे लोअर हो. लेफ्ट पे लोअर हो तो बी का लोअर लेंगे लेकिन फिर सी का अपर लेंगे. ठीक है. दोनों में. दोनों में. ठीक है. ओके. गुड जॉब. अच्छा, यस्टरडे हमने एक मिस्टेक किया था एक क्वेश्चन में और वो क्वेश्चन मुझे रामीन ने भेजा था और आई थिंक सो कि ये इस क्वेश्चन के बारे में आरोम ने माइक ऑन भी किया था एंड आई होप आरोम इज इन द क्लास. अच्छा, आरोम अभी क्लास में नहीं आई है. ओके. कल हमसे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ और वो गलत हुआ सिर्फ इसकी वजह से, जरा यहाँ पे देखें, उस टाइम मैंने क्लास के दौरान ये नोट नहीं किया कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है वदान. 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर में और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बहुत फर्क है. ठीक है. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे जरा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो जरा सब प्लीज जरा देखें. यहाँ पे मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसमें कल हमसे गलती हो गई थी इस क्वेश्चन में, इसीलिए हमारे आंसर गलत थे. ओके. जरा यहाँ पे देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज दिस मच किलोमीटर्स करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर. And now, Vadan, I know that the second significant figure is here 5. Agree or not? Yes, sir. लेकिन we have it's written correct to 2 significant figure and the second significant place is this much. So I'm going to write here 1 and I'm going to write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Understood? Understood, Vadan? ठीक है सर. नाउ आई हैव टू डिवाइड बाय 2. जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा आपको पता है कि क्या होता है, 2 1 2 और 2 5 10 आता है. तो आप लिखोगे 5 1 2 3 4 5 6 zeros 1 2 3 4 5 6 zeros. राइट डाउन द अपर लोअर बाउंड. तो लोअर बाउंड में अभी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो 150 000 000 इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 000 इस तरह लिखें ताकि गलती ना हो. फिर लिखेंगे 000 और फिर हम लिखेंगे 5. तो माइनस करें बेटा 0 0 0 0 0 0. अब 150 माइनस 5 इज 145. तो 145 वाज द आंसर. और इन केस ऑफ द अपर बाउंड वदान सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करना है तो वो 155 आ जाएगा. एग्री और नॉट? Yes, sir. सर अपर जी. और लोअर बाउंड की तो समझ जाती है मगर आई डोंट अंडरस्टैंड हमने 5 की बजाय 1 क्यों लिखा. अच्छा, मैंने 5 की बजाय 1 क्यों लिखा? देयर इज अ रीजन. अगर यहाँ पे शहीर ये लिखा होता ना करेक्ट टू द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, जी सर. तो हम इस 5 को कंसिडर करते. अंडरस्टूड? अच्छा. और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला हुआ है. ठीक है. जी सर. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि 2 सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर प्लेस की बात हो रही है और वहां पे वो सेकंड फिगर प्लेस की जगह पे मैंने 1 लिखना है. क्या लिखना है? 1 सर. तो यानी अगर 155 होता और थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर होता तो आप 5 की बजाय फिर भी 1 लिखते. फिर भी मैं 1 लिखता. एग्री? और अगर 7 लिखा होता सर यानी तब भी 1 मैं 1 ही 7. लिखता. तब भी मैं अच्छा 1 ही लिखता. हमें प्लेस लेनी थी. अंडरस्टूड? ठीक है सर. ठीक है. अंडरस्टूड. रामीन, समझ इज गया. दिस क्लियर टू सर यू नाउ? आपने सर आप क्या कहते हैं कि अगर करेक्ट टू होता सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर फिर क्या करते हैं? देखें, फॉर एग्जांपल जरा एक चीज को अंडरस्टैंड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने जो एरर दिया है ना, ये हमें थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में दिया है. ठीक है. उन्होंने कहा है करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. जी. एग्री? तो मैंने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर में आई वाजंट इंटरेस्टेड. आई वाज इंटरेस्टेड इन द सेकंड सिग्निफिकेंट प्लेस. अग्री? अग्री? जी सर.
और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर प्लेस की जगह पर आई रोट 1 हियर इंटेंशनली, मैंने 1 यहाँ पे इंटेंशनली लिखा और उसके बाद जितने भी नंबर्स थे सब जीरोस लिखे मैंने। अंडरस्टूड? जी। अगर फॉर एग्जांपल हम 5 कब लेते, हम 5 तब लेते जब ये यहाँ पे हमें लिख के दे देते कि करेक्ट टू 5 0 0 एंड 0 हम तब लेते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? सर तो एक और तब सवाल। लेके डिवाइडेड बाय 2 ना करते? नहीं, फिर नहीं होता, जाहिर सी बात करते ना, वो तो अगर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ना लिखा होता ना, फिर तो ये ऐसे होता ना, करेक्ट टू दिस मच। एग्री? तो सर अगर करेक्ट टू 50 और आगे 6 जीरोस होते तो मैं ये कह रही हूँ हम 50 और ये 6 जीरोस को डिवाइडेड बाय 2 ना करते तब? क्यों ना करते, फिर तो हम तो डिवाइड बाय 2 करते हैं ना, ये तो हमें उन्होंने कह दिया ना कि करेक्ट टू द नियरेस्ट दिस। समझ आई? अच्छा ओके ठीक है, समझ आ गॉट इट? सर मेरा सवाल है जी बेटा बोले। सर, लेट्स से 1 5 6 7 ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, तो फिर भी हम 5 के राइट साइड वाले सारे नंबर्स को 0 बनाते हैं, हाँ, यानी हम ओनली सिग्निफिकेंट, नंबर्स लेते हैं। बिल्कुल, इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंट प्लेस से राइट साइड पे जितने नंबर्स हो सारों को 0 बना दे। बिल्कुल। ओके। अब जरा सब जरा गौर करें कि मैं अब यहाँ पे पास पेपर वर्कशीट ओपन कर रहा हूँ। सो काइंडली प्लीज पे अटेंशन कि पास पेपर में ये टॉपिक कैसे आता है, मैं क्यों इस टॉपिक की वर्कशीट करवा रहा हूँ साथ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेजरली स्कूल्स में ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता और आखिर तक बच्चों को नहीं समझ आता ये टॉपिक। ओके, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी इस टॉपिक का नाम है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्कशीट और ये वर्कशीट है, अब जरा प्लीज पे अटेंशन, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज दैट Mariam height is 1.52 meter and correct to the nearest centimeter, but now there is a problem here. Everybody, nearest centimeter, but it is written meter here. So first of all, beta, you know that 1 centimeter is how much meters? First of all, you need to understand this thing. आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अंडरस्टूड? हमें पहले इसको सेम करना है। नियरेस्ट सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो बेटा वी नो दैट वी नीड टू फाइंड आउट दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू x meters. So let's find out this first. So beta, as you know that 1 meter it is equals to 100 centimeters. So 1 centimeter will be 1 by 100. Do you agree with me or not? Yes or no? So 1 centimeter would be 1 by 100, which is 0.01 meters. अलीन समझ आइए बेटा? सो Yes, sir. नियरेस्ट सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग लिख देंगे 0.01। शहीर समझ आ गई? नहीं सर, ये यूनिट चेंज करना समझ नहीं आया। यूनिट चेंज इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि देखिए यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन दिया था मीटर के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड दीज टू यूनिट्स मस्ट बी सेम। ठीक है, ये तब सेम होंगे तभी आप ऐड माइनस कर सकते हैं। एग्री? तो I converted nearest centimeter. I know that nearest centimeter means 1 centimeter. I wanted to find out that 1 centimeter is how much meters. So we know that in maths that 1 meter it is equals to 100 centimeters. It means that 1 centimeter is 1 by 100 of the meter, which is 0.01. Understood? जी सर। सर मगर इस तरह नहीं हो सकता कि यानी हम 152 सेंटीमीटर लिख लें? नहीं, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पे हमें वो नहीं, हम ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, गुड जॉब। आप इस 152 मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे कोशिश होती है कि जो नियरेस्ट सेंटीमीटर, इफ यू हैव द यूनिट हियर एज द नियरेस्ट सेंटीमीटर, so you are supposed to convert this unit into this one. Okay? अच्छा सर, ठीक है, वो Okay? एरर वाले को चेंज करेंगे। Yes. So अब हम करेंगे error divided by 2. Error divided by 2. तो बेटा 0.01 divided by 2. So 0.01 divided by 2 would be what? Mental maths, non calculator है ये। 0.01 divided by 2 की क्या होगा? Anyone? कोई भी बता सकता है? 0.005. 0.005. Well done, good job. That is your error now. सर ये कैसे Kid, करेंगे? ये बेटा कैसा है? क्यों विदाउट कैलकुलेटर आप नहीं कर सकते? 0.01 डिवाइड बाई 2, 1 by 100 डिवाइड बाई 2, 1 by 100 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2। क्यों? आपके लिए इम्पॉसिबल चीज है क्या ये? तो 200 आएगा ये नीचे से और ऊपर 1 क्या आएगा? 1/200। तो 1 by 200 आ जाएगा आपके पास। एग्री? यस। अब 1 by 200 से बेहतर नहीं है कि हम लोग ये 1 by 2 को 0.5 लिखें? यस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये स्मार्ट मूव कर सकते हैं कि हम लोग ये जो स्टेप हमने किया, ये वाला, ये लेट मी इरेज दिस वन, मैं जरा ये इरेज करूं।
कि 1/100 is 0.01 and 1/2 is 0.5. Agree or not? Yes or no? अब देखें डेसिमल मल्टीप्लाई होता है, 1 5 5 आएगा, 1 dp plus 2 dp 3 dp 1 2 3, तो 0.005 आ गया कि नहीं उमर? यस सर। अब ये रफ वर्किंग करके समझाया ताकि आइंदा गलती ना करो। ओके, स्टेट द लोअर बाउंड ऑफ आवर हाइट। सो लोअर बाउंड होगा वदान, लोअर बाउंड ऑफ हाइट, तो 1.52 में से माइनस कर देंगे इस एरर को, ठीक है। सो हम लोग माइनस करते हैं 1.52 माइनस 0.005, तो 5 के ऊपर भी 0 लगा दें, माइनस करना ज़रूरी है, ऑर्डर में लिखना। तो वदान ये हो जाएगा 10 minus 5 is 5, it's 1, 1 minus 0 is 1, 5 minus 0 is 5 point, and so that would be the lower bound. 1.515 meters is the lower bound of the height. Understood everybody or not? Ramin समझ आया बेटा? ईमान जी समझ आया? सर। आलीन, यमुना, Yes, sir. any question? आयला, अरवा, माया, बेटा ये माया किसकी आईडी है? Arom, do you understand this or not? Yes, sir. Arom, you were right yesterday. I just saw that that question that day. I hope when I was explaining that question, you were in the class. Yes, sir. Okay. Let's proceed the second part. So please pay attention. Let me grab this one here. This was my rough working. So second part of the question, please. The length of each of the Mariam paces is 0.5 meters. She walks at a constant speed of 2 paces per second. Calculate the distance in kilometer that she walks in 1 hour. So first of all, it's not an upper bound or lower bound question. It's a speed question. So speed is equals to distance divided by time. Distance divided by time. Upper bound, lower bound का question नहीं है ये. अब ये इस वर्कशीट में आया हुआ है तो हम कर लेंगे. The length of each Mariam paces is 0.55 meters. She walks at a constant speed of 2 paces per second. Calculate the distance in kilometer that she walks in 1 hour. So first of all बेटा याद रखें कि paces किसको कहते हैं, आप ये मुझे बताइएगा जरा. Anyone having any idea what is paces? Anyone? चलो ना यार इंग्लिश बोलो. Arum, what is paces? Steps? Arum, Afreen? According to Google, it is raftar. It is raftar. Raftar means speed. Okay. Paces means speed. अच्छा वो वाला पेस. रफ्तार. ठीक है. The length of each of Mariam's paces is 0.55 meter. She walks at a constant speed of 2 paces per second. हर सेकंड वो 2 पेस लेती है. ठीक है. Calculate the distance in kilometer that she walks in 1 hour. So ये speed का question भी नहीं है, हमें strategy फिर change करना पड़ेगा. It says that we know that in 1 hour, Vadan, how many seconds are there? 60 minutes multiplied with 60 seconds. 60 तो 3600 seconds. ठीक है. Agree? She walks at a constant speed of 2 paces per second. So now multiply with 2. So which is what? 7200. Right, Arom? Now the length of each of Mariam pace is 0.55 meter. So multiply with 0.55. So 7200 multiply with 0.55. So any idea everybody that what would be the answer? 7200 multiply with 55 by 100. Can I do like that? Umar, decimal remove किया है, 0 cancel. So 72 multiply by 55. So what is 72 multiplied by 55? It must be difficult. So I can shift 396. 50. जी बेटा कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसमें. ठीक है. अच्छा सर कैलकुलेटर नहीं अलाउड.
सर जी ऊपर से कैलकुलेट 2 लिख लें, नीचे 55 लिखते हैं और फिर एक एक को मल्टीप्लाई कर लें, दैट वुड बी हाँ, मच इजी। लेकिन हम लोग मेंटली भी ये कर सकते हैं ना कि यहाँ पे 50 जी प्लस जी। 5 आ रहा है, तो हम लोग मेंटल मैथ्स में ऐसे करते हैं शहीर कि 70 प्लस 2 लिख कर 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्री? जी सर। ठीक है। अब 70 मल्टीप्लाई बाय 50, वो मतलब ये है कि हमें मल्टीप्लाई करना ही चाहिए, ये तो बहुत शॉर्टकट्स नहीं बनते, जो बनते भी हैं वो भी डिफिकल्ट है। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 55, सो लेट्स डू दैट इन रफ वर्किंग। सो रफ वर्किंग करना जरूरी है। अच्छा, तो 5 2 दैट 10, 5 7 दैट 35 प्लस 1 36 क्रॉस 5 2 दैट 10, 1 is carry already, 5 7 दैट 35, 35 plus 1 is 36, तो 0693, it is 3960 meters. Arom, it is in meters. I have to convert the answer in kilometers. So will it be 3960 divided by 1000? Yes, sir. So it would be 3.96 kilometers. So 3.96 kilometer is the final answer. Understood everybody or not? यस सर। Afreen, Arwa, Khushi? एक्सक्यूज मी सर, Yes, बेटा। सर ये 1000 किधर से आया है? बेटा ये उन्होंने क्वेश्चन कहा है ना कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, तो मैंने मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट किया। 1 किलोमीटर में बेटा 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Ramin, pay attention please. The cost of the chair is X dollars, which is 70 correct to the nearest 10. So our Vadan, nearest 10 ये बहुत clear है। 10 divided by 2 is what? 5. So upper bound of 70 would be 75 and the lower bound would be 65. Is this clear, Shahir? जी सर क्लियर। The cost of the DEX is Y dollars, which is $900 correct to the nearest 50. So 50 divided by 2 is 25. So 900 plus 25 would be 925 and 900 minus 25 would be 875. Am I right? यस सर। ये लेफ्ट वाला लोअर बाउंड लिखा है और राइट वाला अपर बाउंड लिखा है। कंप्लीट द टेबल इन द आंसर स्पेस। ओके, देखिए आंसर स्पेस में क्या मांग रहा है पार्ट ए में। लोअर बाउंड ऑफ एक्स, तो लोअर बाउंड ऑफ एक्स इज 65, upper bound is 75, lower bound of y is 875 and upper bound is 925. Part A is done. Find the lower bound of the total cost of the desk and a chair. Now beta, please pay attention. Total cost would be equals to, our desk mean one desk plus 4 chairs. Now Vadan, यस the सर। examiner is asking lower bound. It's a plus formula. So lower bound means I have to take lower here of both of them. Agree or not? So one desk, the lower bound of the desk is 875 plus there are 4 chairs. So I have to take lower bound of the chair, so which would be 65. So it would be 875 plus 4 times 65 is 65 plus 65 is 130. 130 plus 130 is 260. Agree? Now 875 plus 260, पेपर में आराम से रफ वर्किंग जरूर करें। 5 7 plus 6 is 13. 1 plus 8 is 9, 9 plus 2 is 11. So 1135 is the total cost of one desk and 4 chairs. सर Arom, do you understand this? सर इस क्वेश्चन में आपको प्लस टोटल से पता लगा, यानी फाइंड बेटा उन्होंने कहा ना कि उन्होंने हमें तो वर्ड से पता लग गया ना, टोटल कॉस्ट ऑफ अ डेस्क एंड अ चेयर, 4 चेयर्स निकालने का तरीका ही दोनों की कॉस्ट को प्लस करना था ना। अच्छा जी ठीक है सर। तो हमें जब क्वेश्चन प्लस का अंदाज फॉर्मूला मिला तो अभी मैंने आपको रूल्स याद कराए हैं ना। ठीक है, देयर जी आर जी सर, 4 वो तो रूल्स। आते हैं, वो तो आता है सर, मगर सिर्फ ये पूछ रहा था कि यानी हमें किस तरह पता लगता है कि प्लस करना होता है माइनस या डिवाइड। ये अभी आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। प्रोसीडिंग, कैन आई प्रोसीड एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, look at the question number 3, please. The population of the city is given as 2,80,000, correct to the nearest 10,000. Okay, but nearest 10,000, but 10,000 is this much, yes or no? And Yes. 10,000 divided by 2 would be 5,000. Do you agree with me, Ramin, or not? सर मैं एक बात पूछ लूं से क्या जी जी प्लीज। अब इधर जैसे करेक्ट टू नियरेस्ट 10,000 है तो इधर हम प्लेस नहीं देखेंगे?
देखे ना, अब यहाँ पे एक चीज अगर समझ आ ले, नियरेस्ट 10,000 पे भी मैं चला जाऊँ ना तो वहां पे भी 8 लिखा हुआ है कि नहीं? मैं लिखा हुआ है। तो 8 के नीचे आप 1 लगा दें और बाकी जीरोस लगा दें तो वही 10,000 आ गया कि नहीं? यहाँ पे क्लियर है ना, वहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर का कहानी थी। हाँ समझ आ गई। तो अब अपर बाउंड ले लें जरा इसका, तो ये 2,85,000 हो जाएगा वदान, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 275 हो। 2,25,000। एग्री? स्टेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इन द गिवन वैल्यू। अब आपने ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर बताना है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल का मतलब है अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट पॉसिबल मींस व्हाट? अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट पॉसिबल, हाँ जी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल का मतलब है अपर बाउंड। सो 285 इज द आंसर फॉर पार्ट ए। ऑलराइट यमुना, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्ड, कार्ड गिवन नहीं है, वी विल ड्रॉ। एग्री? are 7 centimeter by 4 centimeter, तो 7 centimeter by 4 centimeter, correct to the nearest centimeter। nearest centimeter का मतलब क्या है वदान? 1 centimeter। agree? 1 centimeter divided by 2 is 0.5। do you agree with me or not? Shahir, do you agree with me or not? जी सर, एग्रीड। so बेटा 4 का अपर बाउंड होगा 4.5 और लोअर बाउंड होगा 3.5, और 7 का अपर बाउंड होगा 7.5 और लोअर बाउंड होगा 6.5। एग्री और नॉट? Yes, sir. calculate the perimeter, calculate the smallest possible perimeter of the card। So smallest means 3.5. lower bound। agree or not? Yes, sir. smallest का क्या मतलब है बेटा? आफरीन, smallest का मतलब है lower bound। smallest means what? Lower bound. So smallest means lower bound of perimeter। बेटा perimeter means sum of all sides होता है। Sir, 6.5 plus 6.5 plus एक 3.5 मिनट, plus एक 3. मिनट, एक मिनट। तो perimeter is equals to, लोअर बाउंड लेने हैं, तमाम साइड्स के ऐड करना है ना, तो 6.5 प्लस 6.5, खुशी 4.5 प्लस 4.5। बेटा 6.5 और 6.5 होता है 13, और 4.5 और 4.5 होता है 9। तो 13 प्लस 9 कितना आता है बेटा? सर आपने 6.5 क्यों लिए? बेटा पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर तो सामने भी होगा ना तो 6.5, अच्छा अच्छा सॉरी सर। और यहाँ पे भी होगा सर 4. तो आपने 4.5 क्यों लिए? हाँ ये 3.5 लेना गलती, चाहिए था। यस यस यस, ये गलती हो गई। दिस इज 3.5 प्लस 3.5, तो 6.5 प्लस 6.5 इज 13, and 3.5 plus 3.5 is 7, so the answer is 20 centimeter। 6.5 क्यों लिया है वहाँ पर? तो 7 लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर। तो सर ये पेरीमीटर फिर होता से है सम समझाइए ऑफ वाला ऑल साइड्स। क्वेश्चन, जी ये क्वेश्चन फिर से समझा। बेटा जरा गौर करें प्लीज। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की दो लेंथ्स आर अवेलेबल, 4 and 7। नियरेस्ट सेंटीमीटर था, नियरेस्ट सेंटीमीटर मींस 1 divided by 2, तो 0.5। I added 0.5 with 4 and I subtracted 0.5 from 4, then I added 0.5 in 7 and then I subtracted 0.5 from 7। Examiner was saying calculate the smallest possible perimeter of the card। perimeter means sum of all sides। by the word smallest I realize its lower bound। agree? so इसीलिए 4 के 4 मैंने लोअर बाउंड लिए हैं। सर अगर ये ग्रेटेस्ट होता या तो हम हाईएस्ट होता, अपर बाउंड लेते अपर हैं। बाउंड होता। अच्छा सही। हम अपर बाउंड लेते हैं। हम 7.5 को 2 दफा ऐड करते और 4.5 को 2 दफा ऐड करते। अब अगर उर्दू में बताऊं ना, तो उर्दू में ये है कि कम से कम पेरीमीटर जो है ना, बाउंड्री, वो 20 सेंटीमीटर होगी। अंडरस्टूड और नॉट? खुशी? ये हर Yes, चीज sir. 1 से डिवाइड करनी होगी कि नहीं? 1 से नहीं बेटा, 2 से। 2 से, हाँ सर 2 से। जी सर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी एक सवाल ये पूछना है कि इसे बी पार्ट में उन्होंने कहा है ना कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर का वो लोअर बाउंड निकाल रहे हैं। ए पार्ट में तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर मांग रहा है, पॉपुलेशन तो नहीं, तो हम पॉजिटिव 5,000 क्यों नहीं लिखेंगे? देखें, पहली बात तो ये है ना, पहली बात तो ये है ना कि आपकी बात यहाँ पे ठीक है कि वहां पे उन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर आप लिख के बता दो। ठीक है, समझ आई कि जी नहीं? जी तो जी बेटा ग्रेटेस्ट पॉसिबल, अब फॉर एग्जांपल अब आपको एरर की तो समझ आ गई कि जी 5,000 आ गया। ठीक है, जी समझ आई। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन आपसे मांगेंगे तो आप 2,85,000 लिखोगे। समझ आई कि नहीं? जी ये आलीन का ये पॉइंट यहाँ पे राइट है कि यहाँ पे स्टेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर का है ना इन द गिवन वैल्यू।
एरर इसमें 5000 का ही है। अंडरस्टूड और नॉट रामीन, आरोम? लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो पॉपुलेशन मांगते हैं तो आपने फिर उसको एड अप करना पड़ता है, ठीक है? आलीन का ये पॉइंट यहाँ पे वैलिड है। आलीन, गुड जॉब। तो फिर सर आप क्यों 2,85,000 लिख रहे हैं? फिर तो वहां पर तो 5,000 ही होना चाहिए। देखें यहाँ पे दो तीन चीजों को अंडरस्टैंड करें ना, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़े पुराने क्वेश्चंस हैं, समझ आई कि नहीं? जहाँ पे स्टेट ऑफ एरर्स के बारे में पूछा जाता था, अभी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी अपडेट हो गया है सिलेबस में, समझ आइए कि नहीं आपको? अब आपको अच्छा। अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स इन चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल का जो वर्ड है ना, ये आपको अंडरस्टैंड करवाना जरूरी था कि दैट इट इज अपर बाउंड। गॉट सर इट? ये तो हमने पहले नहीं पढ़ा, क्या चीज? ये हमने पहले नहीं पढ़ा। कल नहीं पढ़ा? क्यों तुमने? नहीं, पहले नहीं पढ़ा, कल तो नहीं। बेटा आप स्कूल आया करो तो आपको पता लगे ना। ओके, तो आ तो a rectangular tabletop is 100 सर centimeter long and 7 जी। सर ये मतलब ये तो सर थोड़ा सा ऊपर करें। जी जी सर ये जो अभी आपने बोला है ना कि जी जी ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर, तो जी। सर वो भी 5,000 है, लीस्ट ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर देखें, भी 5,000 है। नहीं देखें वैसे ग्रेटेस्ट, बात कर रहा हूँ। जी जी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर 5000 है, ठीक है? जी लेकिन ये चीज समझ डालें थोड़ा सा कि अभी आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो वो कहेंगे कि ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा होगा, वो तो तो मैं आप समझ गया कहोगे। हूँ सर, हाँ जी। वो तो मैं समझ गया हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि फिर इसका सेंस क्या है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर भी 5,000 है, लीस्ट पॉसिबल एरर भी 5,000 है, मतलब दोनों वैल्यूज में तो कोई फर्क नहीं है ना। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो एरर है ना इसमें, वो 5000 का जी ही हो सकता है, कम से कम तो एरर ठीक नहीं है। होता ना। पहली बात तो हाँ ये हाँ सी, हाँ, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक कम है से ठीक कम तो वैल्यू हो सकती है, कम से कम एरर तो नहीं हो सकता ना। है। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही। ठीक है, चलें। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए को देखें। देखें जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर होती रहेंगी, ठीक है? A rectangular table top is 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 75 सेंटीमीटर वाइड। तो फिर हम रेक्टेंगल बनाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 75 सेंटीमीटर वाइड है। बोथ लेंथ्स आर करेक्ट टू नियरेस्ट 5। तो नियरेस्ट 5, तो 5 डिवाइड बाय 2 ना कर लें? उमर, 2.5 आएगा कि नहीं? 2.5 आएगा उमर की नहीं? यस सर। तो 102.5 हो जाएगा, और जब 2.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 97.5। 2.5 को 100 के साथ प्लस किया। जी। अब 75 के साथ भी 2.5 ऐड और माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 77.5, और ये हो जाएगा 72.5। जी। रामीन, फाइंड द लीस्ट जी पॉसिबल पेरीमीटर। अब आपको आइडिया हो गया कि लीस्ट पॉसिबल का क्या मतलब है? लीस्ट पॉसिबल का मतलब है लोअर बाउंड। एग्री और नॉट? जी सर। तो हम चलिए लिखेंगे पहले पेरीमीटर। माइनस किया फिर प्लस किया। क्या मतलब? पहले आपने प्लस किया कि माइनस किया? बेटा ये 77.5 ये प्लस हुआ हुआ है और 72.5 माइनस हुआ हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, पेरीमीटर का मतलब है, अब वो कह रहा है कि लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर, तो लीस्ट पॉसिबल मतलब लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर। तो अब आपने सबके लोअर बाउंड लेने हैं, तो 4 दफा में इनको ऐड करना पड़ेगा। तो लोअर बाउंड तो 97.5 प्लस 97.5 प्लस 72.5 प्लस 72.5। ऐड करने के लिए रफ वर्किंग का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि पेपर 1 में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आईजीसीएसई वालों का पेपर 2 में नहीं मिलेगा। तो 97.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना इज मैंडेटरी, ठीक है? तो 97.5, देन वी हैव 72.5, देन वी हैव 72.5। बेटा ये जरा 5 5 ऐड कर लें, पॉइंट अपनी जगह पे लिखना जरूरी है, पॉइंट अपनी जगह पर। तो ये 20 आता है, तो 2 यहाँ पे गया। 2 + 7 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16 + 2 इज 18, 18 + 2 इज 20, तो 0 इधर गया, 2 ऊपर गया। 2 + 9 is 11, 11 + 9 is 20, 20 + 7 is 27, and 27 + 7 is 27 + 7 is 34. So this is 340. The lowest possible perimeter is 340 सेंटीमीटर। अगर वदान या शहीर बेटा अगर ये क्वेश्चन अपर बाउंड का होता ना बेटा, तो मैं अपर बाउंड्स लेता, ठीक है? अगर वो कहता ना ग्रेटेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर, तो वो एग्जामिनर वाज आस्किंग अबाउट द अपर बाउंड। गॉट इट? जी यस सर। सर। Okay, now look at part B, beta. In part B, the examiner is saying
that the area of the rectangular room is 22 meter squares correct to the nearest square meter. So बेटा nearest square meter का क्या मतलब है? 1 square meter. Agree or not? So 1 divided by 2 is what? 0.5. Do you agree with me or not? Yes or no? Yes, sir. तो बेटा 22 के साथ 0.5 ऐड करें तो रामीन आएगा 22.5 और माइनस करें तो ये आएगा रामीन 21.5. यस ईमान? The width is 3 meters correct to the nearest meter. तो nearest meter का मतलब बेटा 1 meter, तो 1 divided by 2 is 0.5 again. तो 3 का upper bound होगा 3.5 और lower bound होगा 2.5. Agree, Vadan? Yes, sir. Okay, now the examiner is saying calculate the area of the rectangular room. Beta, we know that area of the rectangle, it is equals to length multiplied by width. Agree or not, Ramin? जी सर. The examiner has given us the area of the room. Agree? The examiner is asking find out the greatest possible length of the room. हमें इसका upper bound निकालना है तो इसका मतलब हमें इन दोनों के upper लेने पड़ेंगे. Do you agree with me or not? Yes, sir. As per the rule. Is this clear or not? Yes, sir. Clear, तो sir. बेटा एरिया का अपर हमारे पास क्या होगा? What would be the area upper? या हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डेवलप कर देते हैं. बेटा यहाँ पे देखें जरा प्लीज सब. That area is equals to length multiplied by width. So beta formula of the length would be area by width. Agree or not, Vadan? ठीक है सर. अब वदान वो एग्जामिनर कह रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ. तो ग्रेटर मींस कि अपर बाउंड होगा इसका. एग्री? ठीक. तो हम लोग एरिया का अपर लेंगे लेकिन अब विथ का लेंगे लोअर क्योंकि ये डिवीजन का फॉर्मूला बना है. एग्री और नॉट? सो याद रखें की इज टू डेवलप द फॉर्मूला फर्स्ट. ठीक है? Sir, isn't length and area the same thing? लेंथ एंड एरिया द सेम थिंग? नो, जी दे सर. कांट बी सेम थिंग. ठीक है? अच्छा, तो आपने वो फॉर्मूला के लिए लेंथ बाहर निकाल दिया और एरिया ऊपर. बेटा वो मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है शहीर के W मल्टीप्लाई हो रहा है. जी सर. So in order to make L the subject, I have to divide with W. Agree ठीक or है not? जी तो जी इसमें I'm समझ गया. लेंथ फाइंड करना है. जी लेंथ फाइंड करना है. तो वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल का मतलब है कि अपर बाउंड ऑफ द लेंथ फाइंड आउट करना है. सो लेंथ would be upper bound of the length would be equals to upper bound of area which is 22.5, but the lower bound of the width which is 2.5, which is what? 2.5. Now Arom, I have one decimal places here. Agree? If I multiply by 10 in numerator and denominator, and you can do this technique as well, and the second technique is writing them in like that order. So Aline, we also familiar with this thing as well. Agree or not? Yes, sir. So 22.5 after removing decimal would be 225 by 10 divided by 25 by 10. So reciprocal. So 225 by 10 multiply by 10 by 25. 10 cancel. So it is 225 divided by 25. So it would be 11. It would be 11. Am I right or not? No. Yes, sir. 9. No. It would be नहीं 9. सर. It would be 9. 25 times 9 is 225. ठीक है? So this is the answer for part B. So this is the answer for part B. So part B, the answer is, let me change the color. यहाँ पे 9 लिख देते हैं. और part A का आंसर है हमारे पास 40. Sir, जी बेटा. just now question में correct to the nearest square meter, अगर ये correct to nearest like 10 square meter होता तो हम 10 divided by 2 करते या 100 divided by 2? नहीं, 10 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. ठीक है? Okay. नियरेस्ट स्क्वायर मीटर का मतलब है नियरेस्ट 1 स्क्वायर मीटर. ठीक है? जी सर. देखें जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे जाएंगे आपको और भी अच्छी समझ आएगी. अभी हम 4th क्वेश्चन पर हैं. ठीक है? चलें जी. पहले वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आराम से करेंगे फिर कभी. अभी ये पार्ट बी करते हैं, वो हेक्सागॉन्स और उनके बारे में डिस्कशन है तो हम इसको देख लेते हैं. The length and the width of the rectangles are respectively given. Each measurement is correct to the nearest centimeter. So बताएं जी बेटा.
write down the upper bound of the length. पहले बताएं लेंथ क्या है इसमें, 50 या 15? 50. लेंथ वेरी तो गुड. width is और 50. और width is 15. बेटा लेंथ पहले लिखी है देखो, और width बाद में लिखी है. Each measurement is correct to the nearest centimeter. Nearest centimeter का मतलब है 1 centimeter. So 1 divided by 2 is 0.5. So upper bound of the length would be 50.5 or the lower bound would be 49.5. And width का upper bound would be 15.5 and the lower bound would be 14.5. Agree or not, Umar? Write down the upper bound of the length. So upper bound of the length is 50.5. That is my answer for part A. And for part 2, it says that find the least possible perimeter of the rectangle. So we have to take the least possible lengths and widths. Agree? अब बस ये आ जाना चाहिए. Length multiplied by width. Sorry, it's not area. Sum of all sides है. So perimeter. So let's take it. So 50. Least possible. So it's 49. Around 49.5. 49.5. And Plus then we 14.5, 14.5. very good. तो अब 14.5 14.5 29 होता है. 49 plus 49 होता है बेटा 98 और 0.5 हो गया 99. खुशी 14.5 plus 14.5 is 29. So 99 plus 29 is 128. Am I right? Yes, sir. So 128 centimeter would be the answer. Aram, can you hear me or not? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Because I'm not getting answer from you. Oh, I don't know why. Are you tired or something? No, sir. So read the question number 6, please. In a race, an athlete runs 1,600 meters at an average speed of 6 meters per second. The distance is given correct to the nearest 100 meters and the speed correct to the nearest meter per second. Complete the Okay, two stop. statements. Now, Aram, you can see one thing, that the distance is given is corrected till 100. So 100 divided by 2 is 50, right, Vadan? So ये हो जाएगा 1550 and Ramin upper bound हो जाएगा 1650. Agree or not? And the जी. speed correct to the nearest meter per second. Meter per second means 1 meter per second. So 1 divided by 2 is 0.5. So Ramin, it would be 6.5 and it would be 5.5. Agree or not? जी, sir. Complete the two statements. Complete the two statements that the distance must be greater than or equals to 1550 and it should be less than 1650. Upper bound यहाँ पे आता है and lower bound यहाँ पे आता है inequality में. ठीक है बतान? Okay, speed के लिए. So it should be greater than or equals to 5.5 and it should be less than 6.5. Understood? Understood? सवाल जी बेटा. सर ये 1600 का तो ठीक है ना, मतलब 50 है तो 1550 और 1650, ये 6 मीटर पर सेकंड का आपने 0.5 क्यों काटा है? ये यहाँ पे मेरा बेटा कुर्बान देखो ये क्या लिखा हुआ है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर पर ओहो, सेकंड. नियरेस्ट ठीक है ठीक मीटर. है, हाँ, ठीक ठीक. ठीक है, ये चीज को ख्याल करना है. अच्छा अच्छा. Now they say that calculate the greatest possible time the race could have taken. Arum, do you know that the speed is equals to distance divided by time? Yes. So beta, I want to develop the formula for the time. What should I do? What should I do? Distance into speed. No. No, distance divided by speed. Yes, swap the places of speed and speed and time. Distance divided by speed. So Shahir, calculate the greatest possible time. So I have to take upper bound of the distance but the lower bound of the speed. Is this clear? So यस upper सर. bound of the distance is 1650 and lower bound of the speed is 5.5. 5.5. Now it's without calculator, so it means that it is possible. Okay, so let's try that. So what I'm सर gonna do is with 5.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे. क्या बात है भाई, गुड जॉब. 16500 डिवाइडेड बाय 55. तुम ऐसे ही कहते हो तुम्हें मैथ्स नहीं आती. यू नो मैथ्स, डोंट वरी. सर मैंने तो नहीं बोला, मुझे आती है. अच्छा 55 टाइम्स 3 165 हो गया कि नहीं?
55 times 3 is 165. So 300 is the answer. Sir, can you please repeat कि 10 के साथ क्यों किया? ओके ये इसलिए रिपीट किया है आरोम क्योंकि ये पॉइंट को खत्म करना चाहता था वदान, ठीक है। तो इसने कहा कि सर अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5.555 बन जाएगा। डू यू एग्री? Oh yeah, सही है, got it. तो बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 55 का जो ट्रिपल होता है 165 आता है, तो 300 इज द आंसर। आरोम, इज दिस क्लियर? Yes, sir. All right. Okay, look at question number 7. Okay, it's your homework. Question number 7 is homework. It's the same question अभी पीछे भी हमने किया है। Question number 8 is again a rectangular box. Try yourself. It's homework. बेटा कल से मैं होमवर्क चेक करूंगा, अच्छा, so please do make sure. सर यहाँ Look ऊपर at वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? क्या चीज बेटा? क्वेश्चन में कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? देखें जाहिर सी बात है ना, क्या वो कह रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज अ डायमेंशन 30 by 10 by 5, तो इसका मतलब एक क्यूबॉइड है। तो फॉर्मूला फॉर द क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। समझ आई? जी सर, अच्छा सर को LBH मल्टीप्लाई। होता है, ठीक है। ओके सर आपने ऊपर एक चीज थी सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ना, सर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला तो हमने किया है ना, ग्रुप में नोट्स पढ़े होंगे। जी जी पढ़े हैं बिल्कुल पढ़े हैं। ठीक है ठीक। ठीक है ओके, जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कह रहा है। पेंसिल्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स, ईच पेंसिल हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मिलीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। मतलब फिर भी कोई एरर है इसमें। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5 मिलीमीटर। एग्री? सो ये हो जाएगा 7.5 आफरीन, और ये हो जाएगा 6.5। एग्री? राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल। तो बेटा लोअर बाउंड ऑफ द डायमीटर होगा 6.5। डू यू एग्री विद मी आरोम? मीशा बेटा Yes, आवाज sir. नहीं आई आज पूरी क्लास में। मीशा कैन यू हियर मी? Okay, find the smallest width of the box that can always hold 8 pencils side by side. So what do you think that what should be the formula for that? सर लोअर बाउंड ऑफ विड्थ का कह रहे हैं ना। Very good. So इसका मतलब है कि 8 pencils side by sides हैं, ठीक है। सर, पहले तो तो भी आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें। तो the answer should be in centimeters, और आंसर कितने होने चाहिए? 65। सेंटीमीटर। तो वो हम आखिर में कर सकते हैं, आखिर में कर सकते हैं, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। हम आखिर में कर सकते हैं, ठीक है। पहले मिलीमीटर्स को हम लोग आराम से कन्वर्ट करते हैं आंसर को। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ द बॉक्स, सो विड्थ ऑफ द बॉक्स एंड इट शुड हैव 8 पेंसिल्स, सो लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड और नॉट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्री? So width, find the smallest possible. So it's adding. I am going to add 8 pencils here, right, Nisha? So if it's plus formula, so I have to take the lower bound. So 6.5 times 8 means that I have to add 6.5, 6.5, 6.5, 8 times. So 6.5 times 8 is how much? So let's do the rough working. Omar, 8 5s are 40, 8 6 are 48, 48 plus 4 is 52. So it would be 52.0, 52.0 millimeter. Beta, 52 millimeter is how much centimeter? 520। 5200 No, 520 1 centimeter has 5200 1 centimeter has 10 millimeters. ठीक है 5200 बेटा, please listen to me. It's 52. So 1 centimeter is 10 millimeters. Agree? So yes 52 millimeters, they are equals x cross multiplication. 52 is equals to 10x divided by 10 on both sides. 10 cancel. So it is 5.2 centimeter. Understood? अच्छा मैं सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कह रहा हाँ जी, तो इसलिए जरा थोड़ा सा बी केयरफुल, ओके? Understood everybody or not? यस सर A box has a volume of 2.5 meter cube. Express this volume in centimeter cube. So beta, you know this already, that 1 meter is equals to 100 centimeter. So Vadan, 1 meter cube would be equals to 1000000 centimeter cubes. Do you agree with me or not?
Do you agree with me or not? Yes, sir. So beta 1 meter cube, it is equals to 1 and 6 zeros means 1 million centimeter cubes. So 2.5 meter cube, it is equals to x. तो 2.5 को इससे multiply करना है. So whenever I multiply around 2.5 with this much amount, so it means that at the point is going to take 6 jumps. Agree? Agree? Yeah. So let's write that. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agree, Aron? Afreen? Yes, जितने भी teeth हैं, you should have to write zeros. Agree? 2, 3, 4, 5. Agree? So that would be the answer for 1 mark. Now John has a length of string and the string is 4 meter long, correct to the nearest 10 centimeter. It's meter, so let's convert that first. So beta, we know that 1 meter has 100 centimeter. Agree? Agree? Shahir? So 10 centimeter, it is equals to x. So cross multiplication करेंगे वदान. So cross multiplication. So 10 is equals to 100x divided by 100 on both sides. So x is equals to 1 by 10. 1 by 10 is what? 0.1. 0.1 meters. So now divide by 2. So 0.1 divided by 2 is 0.05 meters. So our lower bound of the string would be 4 minus 0.05. So 4 minus 0.05 would be 3.95 or not? yes. So that would be the 3.95, and it is in my bad, it is in centimeters. I got the answer in meters. I have to convert in centimeters now. Let's convert the answer into centimeters now. 395 centimeters. Yes. So 3.95 multiply by 100 in order to get the answer in centimeters. ठीक है, 395 centimeters. समझ आई है बेटा वदान? Yes, sir. वदान बेटा, डू मेक श्योर कि कल की क्लास से पहले आप कल वाली रिकॉर्डिंग जरूर देख लो, ठीक है? Yes, sir. जितनी मिस मैं हुई सारी देख लूंगा. अच्छा, मैंने आप लोगों को मैंने कल क्लास में बताया था, प्लीज डू वॉच हियर कि यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है, ठीक है, आप जस्ट वहां पे चले जाएं, ठीक है? आप यहाँ वो जब प्लेलिस्ट ओपन होगी तो वो प्लेलिस्ट कुछ ऐसी आपको नजर आएगी, इमेजिन 2025 क्लास रिकॉर्डिंग्स. नजर आ रहा है सबको बेटा? मुझे डू यू अंडरस्टैंड बेटा? स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबको? अरवा, कैन यू सी दैट? ईमान? Yes, sir. अरवा, यू हैव टू सर प्लेलिस्ट ही शो नहीं हो रही. क्यों आपको शो नहीं हो रही बेटा? आपने वही लिंक प्रेस करना है जो मैंने भेजा है आपको, ठीक ये है? लिंक के बाहर आप नहीं होगा लिंक के बगैर नहीं होगा, जिसके पास लिंक होगा वही देख सकेगा. इज दिस क्लियर? सर आपने तो भेजी है ग्रुप? बेटा मैंने ग्रुप में भेजा, मैं दोबारा भेज देता हूँ. अरवा बेटा, आपने जरूर देखना है, ठीक है? आपने मिस की हुई है स्टार्ट के लेसन. तो लेसन नंबर 12 तक मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है. 13 कल वाला सर था और कल आज वाला भी है, कल वाला है. कल वाला मैं आज अपलोड करता हूँ. कल इंटरनेट डाउन था, यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रहा था. आज मैं अपलोड करता हूँ लेसन 13 भी और लेसन 14 भी, ठीक है? यस सर. ये आज का लेसन 14 है हमारा. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. चलें, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह सी यू टुमारो. आई एम सेंडिंग द वर्क. मैं कोशिश करूंगा कि सारी वर्कशीट आपको भेजूं ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? अल्लाह हाफिज सर. Nafis. टेक केयर. हाफिज. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच.